माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, आज के विधानसभा सत्र के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। अब सदन शपथ ग्रहण हेतु माननीय उप अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता है। मैं जो राजस्थान विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी कि मैं उस कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी जिसे मैं ग्रहण करने वाली हूँ। जय हिंद। माननीय महामहिम, Honorable Speaker, respected Chief Minister and the distinguished members of this winter session. A very good morning to all. As the Governor of Rajasthan, it is my pride to outline our stage journey of Jan Kalyan over the last 5 years and our vision for the next 5 years to build a Viksit Rajasthan. In past 5 years, we successfully launched the Rajasthan IT Policy 2023, establishing iStart to support startups and Janadhar for transparent digital delivery. In the next 5 years, we will expand the Bhamasha Techno Hub and introduce 5G-enabled smart governance in every village to make Rajasthan a global IT destination. In past 5 years, under the Shiksha Setu and Kalibai Wheel Scooty scheme, thousands of girls receive free higher education and transport. In next 5 years, the government pledges free education for every girl child from KG to PG in state-run institutions to achieve 100% female literacy. In past 5 years, we promoted the Rajasthan International Center and protected our heritage through the UNESCO City of Craft status. In the next 5 years, the government will promptly move a resolution to include Rajasthani in the 8th schedule of Constitution and make it a compulsory subject in schools to preserve our Maya Bhasha. In past 5 years, ensure 10% EWS reservation and standard in the Anuprati coaching scheme for competitive exams. In next 5 years, we will conduct a skill mapping census to ensure reservation benefits reach the last person in the queue. In last 5 years, we implemented the Surakshit School initiative with the mandatory CCTV and grievance boxes. In next 5 years, we introduced the Yuva Sanskar program to integrate moral education and strict anti-drug policies in campuses to ensure a disciplined environment. Our vision is clear, a Rajasthan that is modern yet rooted in its heritage. I urge all members to work beyond party lines for the progress of 8 crore citizens. With that, I am letting my words to end. Padharo Mare Desh, Badlo Mare Desh. Thank you, Jai Hind. अब सदन प्रश्नकाल की ओर बढ़ेगा। माननीय सदस्य अपने प्रश्न संबंधित मंत्रियों से पूछ सकते हैं। माननीय विपक्षी दल अपना प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं झालवाड़ा की विधायक जनता की आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा सवाल स्वास्थ्य मंत्री से यह है कि जैसा कि देखा जाए, गुजरात एक ड्राई स्टेट कहा जाता है, वहाँ पर शराब बेचना गैर कानूनी है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान में इसका लीगल लाइसेंस दिया जाता है, ऐसा क्यों? रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदन को मेरा सादर प्रणाम। मैं स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न से सहमत हूँ, लेकिन राज्य सरकार में शराब पर पूर्ण पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नियम बनाए हैं, जैसे कि हाईवे से दुकानों को हटाने के लिए सख्त नियम लागू किए गए। खुले में शराब पीने की संस्कृति को रोकने के लिए एक दंडनीय अपराध माना गया है। दुकानों की दूरियां 75 मीटर से बढ़ाकर 150 मीटर कर दी गई है। धन्यवाद। विपक्षी दल इसके उत्तर देना चाहते हैं। जी अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उन्होंने कहा कि ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि पुराने डाटा से देखा जाए, सरकार को सालाना 12,000 करोड़ की आय शराब बेचने से होती है।
होती है। क्या यही वह लालच है जो इन्हें इस काम को करने से रोक रहा है? क्या सरकार को सिर्फ अपनी जेब गर्म करने से मतलब है या फिर जनता का भी कोई ध्यान है? रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दें। मान्यवर, राजस्थान सरकार में शराब को बढ़ावा नहीं दिया जाता है और न ही अपने जेब गर्म करने से मतलब है। ऐसा लग रहा है विपक्ष अपनी सच्चाई बता रहा है। राजस्थान में शराब एक आय का स्रोत है जिससे हम कई मुफ्त सरकारी योजनाएं चलाते हैं। हमारी सरकार पैसा खाने पर नहीं खर्च करने पर विश्वास रखती है जिससे राजस्थान आगे बढ़े। जैसे हम नशा मुक्ति केंद्र और नशा मुक्त भारत जैसे जागरूकता अभियान चलाने पर पैसा खर्च करते हैं। और आपको इतनी चिंता होती तो आपने आपकी सत्ता में से बंद क्यों नहीं किया? और हम अपना प्रयास कर रहे हैं इसे कम से कम करने का जिससे हम जनता का स्वास्थ्य का भी ख्याल रख सके। धन्यवाद। विपक्षी दल इस पे जवाब देना चाहते हैं। जी अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने कहा कि पूरी तरह से बैन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने अपने शब्दों में उदाहरण सहित स्पष्ट किया था कि गुजरात में ऐसा हुआ है। क्या इसका कोई उत्तर है इनके पास? रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दें। मान्यवर, आप बार-बार गुजरात की बात कह रहे हैं लेकिन आपकी जानकारी शायद पूरी नहीं है क्योंकि प्रतिदिन रोज बिहार और गुजरात से 5 से 6 लोगों की मृत्यु अल्कोहल पीने की वजह से हो रही है। इससे ये साफ पता चलता है कि गुजरात और बिहार में भी कहीं ना कहीं शराब की एबिलिटी है और हम अपनी राजस्थान सरकार में इसको कम करने के लिए इलीगल लाइसेंस देते हैं जिससे दुकानें सीमित रहें और इसके लिए हम अपने प्रयास कर रहे हैं जिससे कि कम से कम शराब की दुकानें हो और शराब की दुकानें खुले में चलाने और बेचने के लिए हमने अपना पुलिस प्रबंध सख्त कर रखा है जिससे उन पर सीधा जुर्माना लगाया जाता है। धन्यवाद। विपक्षी दल इस पे जवाब देना चाहते हैं। जी नहीं। माननीय विपक्षी दल अपना अगला प्रश्न पूछें। माननीय स्पीकर महोदय, मैं अनूपगढ़ का एमएलए आईटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दे। मेरा प्रश्न है कि स्कूल एजुकेशन में आईटी सब्जेक्ट एक कंपलसरी सब्जेक्ट क्यों नहीं है? धन्यवाद। रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संसद में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में उपस्थित हूँ। राजस्थान सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी एक स्वतंत्र मंत्रालय नहीं है, परंतु इस युवा संसद में एआई, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप, डिजिटल राजस्थान आदि के महत्व को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में लिया गया। तो अब आते हैं मुद्दे पर। तो विपक्ष द्वारा पूछा गया प्रश्न ऐसा लग रहा है जैसे किसी 5G मोबाइल में 2G सिम डाला। मैं पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में विपक्ष को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने REI राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के तहत आईटी को बढ़ावा दिया है और RKCL राजस्थान कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत ग्रामीण क्षेत्रों तक आईटी लैब को स्थापित किया है। अभी भी कुछ स्कूलों में प्रशिक्षित कंप्यूटर शिक्षकों एवं आईटी लैब की कमी है और हमारी सरकार इस कमी को पूरी कर रही है। जैसे ये कमी पूरी होगी वैसे ही आईटी को एक अनिवार्य विषय के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। और जहाँ राजस्थान डिजिटल हो रहा है विपक्ष अभी भी एरोप्लेन मोड में। विपक्षी दल इस पे जवाब देना चाहते हैं। जी नहीं। माननीय विपक्षी दल अपना अगला प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिकंदरा क्षेत्र का एमएलए इस सरकार को बताना चाहूंगा कि हाल ही में जयपुर में एक 9 साल की लड़की जो कि मात्र 4th कक्षा में पढ़ रही थी, उसने सुसाइड कर लिया। बाद में पता चला तो वो 18 महीने से अपने ही स्कूल में बुली की जा रही थी। उसने अपनी क्लास टीचर को 5 बार बताया। She said 5 times, but no response from the school authority. लेकिन ये तो एक केस है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान में ऐसे कई हजारों केस रोज होते हैं। आए दिन रोज बुलिंग फेस करते हैं, कहीं स्कूल में, कॉरिडोर में, बस के पीछे, यहाँ वहाँ। मैं चाहूंगा कि राजस्थान का हर एक बच्चा, चाहे वो स्कूल के अंदर हो चाहे वो स्कूल के बाहर हो, वो सेफ फील करे, उसकी मेंटल हेल्थ में कोई इशू नहीं है। क्या इस सरकार ने ऐसे कोई ठोस कदम उठाए हैं? धन्यवाद। रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आज विपक्ष को छात्रों की सुरक्षा की याद आई, लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूं वैसे सवाल पूछ रहे हैं जबकि हमारी सरकार उन सवालों का समाधान जमीन स्तर उतार चुकी है। स्कूल सुरक्षा को लेकर माननीय मंत्री जी का स्टैंड एकदम क्लियर है। राजस्थान के हर एक छात्र की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कोई दिलाई नहीं भरती है, ये साबुत ही है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। मंत्री जी खुद स्कूल में सरप्राइज इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, चाहे वो साफ सफाई हो, वॉशिंग फैसिलिटीज हो या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनकी कमी दिखते ही वहाँ तुरंत कार्रवाई भी हुई है। बुलिंग और वायलेंस पर प्रहार, हमने होस्ट को सेफ्टी अप्रोच अपनाए हैं। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है बल्कि हॉलिस्टिक अप्रोच है। इसमें स्कूल का माहौल, शिक्षक छात्र संबंध और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है जिससे बुलिंग की शिकायतें जड़ से खत्म हो।
बस सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट नॉर्म्स, स्कूल बस सेफ्टी गाइडलाइंस केंद्र सरकार की है, लेकिन उन सख्ती से लागू करने का काम हमारी सरकार का है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर स्कूल ट्रांसपोर्ट नेशनल प्रोटोकॉल्स का पालन करे, चाहे वो ड्राइवर वेरिफिकेशन हो या फिर व्हीकल की कंडीशन हो। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान के हर एक छात्र को स्कूल के अंदर और बाहर हर कदम पर 100% सुरक्षित महसूस कराना। इसके लिए हमारी सरकार कमिटेड है और लगातार काम भी कर रही है। विपक्ष आराम करे, हम काम कर रहे हैं। विपक्षी दल इस पे त्याग देना चाहते हैं? माननीय विपक्षी दल अपना अगला प्रश्न पूछे। माननीय स्पीकर महोदय, मैं दौसा का विधायक पूछना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने राजस्थानी भाषा को प्रिजर्व या प्रमोट करने के लिए क्या किया है? रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का सवाल सुन के मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जिस पक्ष ने कभी खुद कुछ नहीं किया उसे हमारा काम समझ में कैसे आए। राजस्थानी भाषा के लिए जो कदम हमने उठाए वो विपक्ष की राजनीति की तरह केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तव में जमीन पर दिखाई देते हैं। और अगर विपक्ष को नजर नहीं आ रहा है तो समस्या उनकी दृष्टि में है, हमारे काम में नहीं, क्योंकि हमने राजस्थानी भाषा को संरक्षित करने के लिए अकादमी और सांस्कृतिक संस्थानों को मजबूत किया है, ताकि हमारे कवि, लेखक, लोक कलाकार अपने काम को आगे बढ़ा सके। स्कूलों में राजस्थानी भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में लिया जा रहा है, ताकि अपनी नई पीढ़ी अपनी मातृभाषा से जुड़ी रहे। हम लगातार यह मांग कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सके, ताकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके। हमने लोक कला, संस्कृति, मेलों और मीडिया कार्यक्रमों को समर्थन देकर राजस्थानी भाषा को न केवल संरक्षित किया है बल्कि जन जन तक पहुंचाया है। मैं पूछना चाहती हूं कि विपक्ष को राजस्थानी भाषा की याद केवल चुनाव के समय ही क्यों आती है? हमें तो राजस्थानी भाषा की याद हर रोज रहती है। उनके लिए हमारी राजस्थानी भाषा मुद्दा है, लेकिन हमें पता है कि हमारे लिए, हमारे राजस्थान के लिए हमारी राजस्थानी भाषा पहचान है, हमारी शान है। समस्या ये है कि हमने इतना काम किया कि लगता है विपक्ष की राजनीति उस काम के आगे टिक ही नहीं पा रही। विपक्षी दल इस पे त्याग देना चाहते हैं? जी, इन्होंने इतना कुछ बताया, इतना कुछ हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बार-बार पूछ रहा है कि राजस्थानी भाषा प्रिजर्व कहाँ हो रही है। सो लेट मी टेल यू, जयपुर में राजस्थानी साहित्य अकेडमी और कल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू राजस्थानी लिटरेचर, राइटर्स, फोल्क फॉर्म्स को प्रमोट किया जा रहा है। जोधपुर और बीकानेर में मारवाड़ी लैंग्वेज, लोक साहित्य, फोल्क सॉन्ग्स और ओरल ट्रेडिशन को एकेडमिक और कल्चरल सपोर्ट मिल रहा है। उदयपुर और मेवाड़ रीजन में मेवाड़ी लैंग्वेज और फोल्क कल्चर को फेस्टिवल डॉक्यूमेंटेशन और लोकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू प्रिजर्व किया जा रहा है। शेखावटी रीजन, सीकर, झुंझुनू में शेखावटी डायलेक्ट, फोल्क थिएटर और हेरिटेज स्टोरी टेलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। स्कूल और कम्युनिटी प्रोग्राम्स में पूरे राजस्थान में एनईपी के तहत मदर टंग और लोकल लैंग्वेज बेस्ड एक्टिविटीज को इंकरेज किया जा रहा है। धन्यवाद। विपक्षी दल इस पे त्याग देना चाहते हैं? जी, इतना सब कुछ हर एक ब्लॉक लेवल पर क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये ब्लॉक लेवल पर होगा तो लोगों को अपनी संस्कृति और कला दिखाने का मौका मिल सकेगा। रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल की अभी मेरे पास पूर्ण सूचना नहीं है। मैं इस सवाल का उत्तर अगले सत्र में दूंगी। माननीय विपक्षी दल अपना अगला प्रश्न पूछे। माननीय स्पीकर महोदय, मैं लालसोट का विधायक आपसे पूछना चाहता हूं कि अनुशासन से जुड़े फैसलों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए आप कौन सा पारदर्शी सिस्टम बनाएंगे? धन्यवाद। रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदन को मेरा नमस्कार। मैं विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्णतः सक्षम हूँ। अनुशासन से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हमने नियम, दायित्व और दंड पहले से लिखित रूप में बता दिए गए हैं। किसी भी शिकायत पर दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और प्रमाण देखे जाते हैं। दंड पहले से ही परामर्श, काउंसलिंग और सुधार के अवसर भी दिए जाते हैं। हमारा उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि जिम्मेदारी और आत्मानुशासन विकसित करना है। पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, स्पष्ट और भरोसेमंद रहे, यही प्राथमिकता है। धन्यवाद। विपक्षी दल इस पे त्याग देना चाहते हैं? जी नहीं। माननीय विपक्षी दल अपना अगला प्रश्न पूछे। Honorable Speaker, sir, I am MLA of Jaisalmer. I wish to ask a question to Honorable Education Minister. There are so many incidents happening in education. So, what you have done for stress-free education? धन्यवाद। रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदन को मेरा नमस्कार। मैं शिक्षा मंत्री विपक्ष दल से पूछे गए प्रश्न का उत्तर
देने के लिए सक्षम हूँ। जैसे कि हमारे विधायक महोदय का प्रश्न है कि हमने स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के लिए क्या किया है, तो मैं स्ट्रेस फ्री एजुकेशन के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, जिनमें शिक्षकों को क्लासरूम में मोबाइल ले जाने से रोकना, शिक्षकों की कमी पूरी करने की घोषणा और प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान चलाना शामिल है। और इसके साथ साथ ही परीक्षाओं के पेपर विशेषज्ञों से तैयार करवाना शामिल है, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और छात्रों पर अनावश्यक दबाव कम हो। साथ ही साथ आप ये जानते ही होंगे कि बुल्ड एक्टिविटी लर्निंग आज चीजों से छात्रों को जोड़ा जा रहा है, जैसे पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के बारे में बताना और उसके उपयोग से बचने की शपथ दिलाना शामिल है। साथ ही साथ आप ये जानते होंगे कि तनाव मुक्त शिक्षा के लिए हम बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स का सिद्धांत लागू कर रहे हैं, जिसमें साल में 2 बार बोर्ड परीक्षाएं होंगी और दोनों में से बेहतर अंक गिने जाएंगे, जिससे कि छात्रों को बेहतर प्रदर्शन करने का मौका मिले। धन्यवाद। विपक्ष दल इस पे तर्क देना चाहते हैं। जी अध्यक्ष महोदय, सर जो योजनाएं बताई गई हैं उसमें से कुछ अभी तक जमीनी स्तर पर लागू ही नहीं हो पाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी हमने तनाव मुक्त शिक्षा के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। आनंदमयी और खेल शिक्षा पर जोर, स्कूलों को ग्रेड की दौड़ से हटाकर आनंददायक सीखने के केंद्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जहाँ छात्र मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और रचनात्मकता को बढ़ावा मिले। मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस, शिक्षकों को छात्र के व्यवहार में बदलाव पहचानने और उन्हें भावनात्मक सहारा देने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि वे तनाव मुक्त होकर सीख सके। स्माइल, सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए यह सोशल मीडिया आधारित कार्यक्रम शुरू किया गया था। हवा महल, जॉयफुल सैटरडे, शनिवार को छात्रों के लिए आनंददायक गतिविधियां जैसे ड्राइंग, कहानी सुनाना, खेल के माध्यम से सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। डिजिटल लर्निंग पहल, शिक्षण को सुगम बनाने के लिए दीक्षा सामग्री, ई कंटेंट और यूट्यूब पर करियर मार्गदर्शन सत्र जैसी पहल। और नो डिक्टेशन पॉलिसी, कक्षा 5वीं में फेल होने वाले बच्चों को अगली कक्षा में ऑटोमेटिक प्रमोट नहीं किया जाएगा, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जा सके। यह एक तरह से गुणवत्ता के लिए शक्ति है। धन्यवाद। माननीय विपक्षी दल अपना अगला प्रश्न पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी सम्मानित मंत्रीगण को मेरा सादर प्रणाम। मैं राजस्थान राज्य के विधानसभा क्षेत्र शांतिनगर जयपुर से निर्वाचित विधायक के रूप में सरकार का ध्यान आरक्षण के मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार रिजर्वेशन पॉलिसी को समय समय पर रिव्यू करके मेरिट और सोशल जस्टिस के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कोई ठोस कदम उठा रही है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक रिजर्वेशन सहारा रहेगा तब तक समानता आएगी, लेकिन जब वो अधिकार बन जाएगा तब समानता सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदन, मैं विधि मंत्री विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व सरकार द्वारा गुणात्मकता को ध्यान में न रखते हुए मात्र आरक्षण के आधार पर ही चयन प्रक्रिया को संपन्न करवाया जा रहा था, परंतु हमारी सरकार द्वारा देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनमें सभी भर्ती परीक्षाओं में 40% अंक तक की अनिवार्यता दी गई है, जिससे रिजर्वेशन और मेरिट के बीच में बैलेंस बनाया जा सके। और तो और हमारी सरकार ने सभी जातियों पर क्रिमिनल लागू करने की पूरी कोशिश की है। और मैं आपको बता दूं महोदय जी, यह वही विपक्षी दल है जो हमेशा से मांग करता आया है पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए, पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए, परंतु आज यही रिजर्वेशन पर सवाल उठा रहा है। नीतियों में ही दर्द नहीं है, और जो पार्टी चुनाव आने पर अपनी नीतियां बदल दे वह देश का भविष्य क्या संभालेगी? विपक्षी दल इस पे कोई तर्क देना चाहते हैं? जी नहीं। माननीय विपक्षी दल अपना अगला प्रश्न पूछे। Honorable Speaker, sir, I am Emily from Bikaner. I wish to ask a question to the sports minister. What you have done for sports? धन्यवाद। रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान का खेल मंत्री विपक्ष द्वारा उठाए गए राजस्थान में खेल विकास से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खड़ा हूँ। विपक्ष पूछता है आपने खेलों के लिए क्या किया। मैं कहना चाहता हूँ हमने कुछ वर्षों में वो किया जो उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में नहीं किया। खेलो इंडिया योजना के तहत राजस्थान में 50 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र सक्रिय हैं, जहाँ युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुझे गर्व है कि राजस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की सफल मेजबान की, जो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में आयोजित किए गए। ये हमारे राज्य के इतिहास की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक रही। स्कूल स्तर पर हमारी सरकार ने राजस्थान स्कूल स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें हर जिले में एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो और वॉलीबॉल जैसे प्रतियोगिताएं हो रही हैं।
राज्य के कई सरकारी विद्यालयों में मिनी स्टेडियम और खेल मैदान बनाए गए ताकि बच्चे सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि खेलें। धन्यवाद। कि विपक्षी दल पे कोई तर्क देना चाहता है? आज के एजेंडे का अगला विषय बिल प्रस्तुतिकरण है। अध्यक्ष रूलिंग पार्टी को बिल प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। Honorable Speaker, sir, Leader of Opposition, and respected member of the Sabbath House, मैं आज इस हाउस के सामने वोकेशनल ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप एक्सपेंशन बिल प्रेजेंट करने जा रही हूँ। सर, इस बिल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यह है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन को स्ट्रेंथन किया जा सके और हमारे यूथ को जॉब रेडी बनाया जा सके। आज हम सब जानते हैं कि डिग्री होने के बावजूद भी कई युवाओं को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल और इंडस्ट्री एक्सपोजर की कमी होती है। इसी गैप को ब्रिज करने के लिए यह बिल प्रपोज किया गया है। यह बिल स्कूल और कॉलेजेस के साथ सर्टिफाइड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करेगा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज के साथ अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी को एक्सपेंड करेगा ताकि स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस गेन कर सकें और तो और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा। सर, यह बिल सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का जरिया नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है क्योंकि स्किल यूथ ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की फाउंडेशन होता है। मैं यह मानती हूँ कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल और एप्लीकेशन भी होता है और यह बिल इसी विजन को रियलिटी में बदलने का काम करेगा। इसलिए मैं इस हाउस के सभी रिस्पेक्टेड मेंबर से यह अपील करती हूँ कि वो नेशनल इंटरेस्ट और यूथ वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए इस बिल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। अब सदन अपोजिशन लीडर व समस्त विपक्षी दल को इस बिल पर तर्क प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। माननीय विपक्षी दल अपना तर्क पूछे। दल द्वारा इस बिल का अपोज करते हुए प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अगर वोकेशनल ट्रेनिंग एक्सपेंड हो रही है तो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में जो इक्विपमेंट और ट्रेनर की शॉर्टेज है उसे कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? धन्यवाद। रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दे। Honorable Speaker, sir, respected members of this assembly, today I rise to speak on behalf of the ruling party as the CM of Rajasthan. With full responsibility and confidence, I present the new vision of the new Rajasthan. Speaker, sir, we believe in one clear principle: सबका साथ, सबका विकास, and सबका विश्वास. This isn't a slogan alone. This is the working philosophy of our governance. माननीय स्पीकर महोदय, जब ये पावर में थे, तब इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट क्यों नहीं बनाया गया? तब आपको न यूथ याद था, न स्किल और न ही टेक्नोलॉजी। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स सिस्टम एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन। इस बिल के थ्रू एग्जिस्टिंग आईटीज, पॉलिटेक्निक्स और स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। गवर्नमेंट कैंपसेस को आफ्टर आवर स्किल्स सेंटर्स बनाया जाएगा। प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होगा। रूरल एरियाज के लिए मोबाइल स्किल लैब्स होंगी। स्पीकर सर, इसलिए इरेडिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक्सक्यूज था, ये बिल उसका सॉल्यूशन है। माननीय विपक्षी दल अपना अगला तर्क पूछे। अगला तर्क पूछना चाहूंगी, पारंपरिक डिग्री धारकों की तुलना में व्यावसायिक अनुभव की कमी के कारण संभावित रूप से कम मान्यता प्राप्त करवाने की आपूर्ति के विषय में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दे। स्पीकर सर, इस बिल के अंदर ऐसे फीचर्स हैं जो कि जॉब अनसर्टेनिटी को हटाती हैं, जैसे प्लेसमेंट सपोर्ट, स्किल को स्टार्टअप पाथवेज, इंडस्ट्री लिंक्ड अप्रेंटिसशिप and data points is country with structured apprenticeship and placement support reports unemployment post training 50% less than traditional graduates. सर, रिकॉग्निशन का असली माप क्या है? डिग्री, सर्टिफिकेट या क्या? रियलिटी ये है कि आज की इंडस्ट्री डिग्री नहीं सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी देखती है। हर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस्ड वर्कर को जल्दी जॉब मिलती है। अंडर दिस बिल देयर इज अ सर्टिफिकेशन रिकॉग्निशन कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेड, इसलिए ये बिल पास होगा। इस पे कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं। माननीय विपक्षी दल अपना अगला तर्क पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष तो उस दर्जी के समान है जो शर्ट के आस्तीन को काट देता है और शर्ट की पॉकेट में छेद कर देता है। ये लोग स्टूडेंट के हाथ में से उसका पेन छीन रहे हैं और उनके हाथ में रेड बॉल थमा रहे हैं। ये इनकी कैसी राजनीति है? रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर एनालॉजी देनी ही है तो सच पूरी तरह कहना चाहिए। असल में विपक्ष दर्जी जैसा है जो नाप लेना भूल जाता है, कपड़ा खराब करता है
माननीय विपक्षी दल अपना अगला प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बिल क्लियरली दिख रहा है कि ये जयपुर के एसी रूम्स में ड्राफ्ट किया होगा, बिना जैसलमेर की गर्मी को ध्यान रखे। ये बिल उन स्टूडेंट को इग्नोर कर रहा है जो जिनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना रहता है अपने पढ़ाई के वक्त। ये बिल उन स्टूडेंट को हमेशा इग्नोर करता रहेगा कि इनकी कैसी राजनीति है जो इस ऐसे बिल को पास कर रहे हैं। रूलिंग पार्टी इसका उत्तर दें। स्पीकर सर, मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि अगर ये बिल एसी के कमरों में बना होता तो इसमें गांव के बच्चों के हाथों में हुनर और काम की बात नहीं थी। ये बिल गांव को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आईटीआई, पॉलिटेक्निक्स, स्किल सेंटर मोस्टली डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल पर ही स्थित है। इसलिए ये बिल एसी रूम से नहीं, राजस्थान के गांव, खेत और कारखानों की जरूरतों से निकला है। एसी रूम का ताना देते हैं, खुद पसीने में सच से डरते हैं। बिल पर बहस नहीं, बयान हल्का, तर्क टूटे जैसे शर्ट का बटन झटका। कहते हैं ये बिल एसी में बना है, पर जनता की गर्मी और बेरोजगारी क्या इन्हें नहीं दिखा है? जो खुद जमीन से कटे हवा में जिए, वो मेहनत की खुशबू क्या जान पाए? बटन टूटे तो कपड़े को दोष देते हैं, नीति फेल हो तो सरकार को कोस देते हैं। खुद तैयारी शून्य, भाषण उदार, फिर कहते हैं लोकतंत्र है बीमार। एसी का शोर है बस बहाना, सच्चाई से ध्यान हटाने का है पैमाना। जब जवाब नहीं होता सवालों का यहाँ, तो बटन, कुर्सी, एसी सब आते हैं वहाँ। जनता देख रही है, सुन रही है सब। कौन करता है काम, कौन करता है गप। ना एसी से देश चलता है, ना तानों की बातों से। देश चलता है नियति से और मेहनत के साथों से। जय भवानी। माननीय विपक्षी दल अपना अगला प्रश्न पूछिए। धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय। अब मैं नेता विपक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अगर राजस्थान में रोजगार इतना बढ़ रहा है तो पढ़े लिखे युवा आज भी बेरोजगार क्यों है? भर्तियां समय पर क्यों नहीं होती है और स्थायी नौकरी की जगह अस्थायी कैंडिडेट्स क्यों दिए जाते हैं? क्या युवाओं का भविष्य केवल चुनावी वादों पर छोड़ा जा सकता है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं विपक्ष को एक सरल सी बात समझाना चाहती हूँ। ये वैसा है कि जैसे किसी शहर में अस्पताल तो बना दिया जाए, लेकिन डॉक्टर को ऑपरेशन करना ही नहीं आए। फिर जब मरीज इलाज ना पाए तो अस्पताल को ही दोष देना आसान होता है। सच्चाई ये है स्पीकर सर, रोजगार के अवसर है, लेकिन सालों तक युवाओं को सिर्फ डिग्री दी गई, काम करने की ट्रेनिंग नहीं। जिन पढ़े लिखे युवाओं की बात हो रही है, वो पढ़ाई अधूरी है, क्योंकि पढ़ाई में सिर्फ किताब ही नहीं आती, स्किल्स भी आती है। और रही बात स्थायी नौकरी की, तो पहले स्किल, फिर एक्सपीरियंस और उसके बाद स्टेबिलिटी। और हाँ, जिन वादों की ये बात कर रहे हैं, तो महोदय वादे तो होते हैं जिनके पीछे कोई व्यवस्था ना हो। ये बिल व्यवस्था है। युवा बेरोजगार इसलिए नहीं है कि अवसर नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें अवसर का लायक ही नहीं बनाया गया, और इसीलिए ये बिल पास होगा। माननीय विपक्षी दल अपना अगला प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर राजस्थान में अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो आम आदमी महंगाई से क्यों परेशान है? पेट्रोल, गैस और बिजली के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? क्या विकास सिर्फ कागजों में हो रहा है या जनता की थाली तक भी पहुंचेगा? माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न बहुत गंभीर है और अभी हम जो बिल है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये धर्म बनता है कि हमारी सरकार विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही और अच्छा उत्तर दे, और मैं सक्षम हूँ ये बोलने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, जब विपक्ष सत्ता में था, बिजली उत्पादन नहीं बढ़ाया गया, ट्रांसमिशन लूज बढ़ने दिए गए, डिस्कम्स को कर्ज में डुबो दिया गया, सस्ती रिन्यूएबल पावर पर निवेश डाला गया। आज राज्य उन्हीं घाटों का बिल चुका रहा है। जो लोग सालों तक बिजली के हिसाब नहीं रख पाए, आज वे बिजली के दाम पर ज्ञान दे रहे हैं। आज हमारी सरकार लाइन लॉस कम कर रही है, फ्री सब्सिडाइज पावर गरीबों को दे रही है, लॉन्ग टर्म कॉस्ट रिडक्शन पर काम कर रही है। विपक्ष ने नींव तोड़ी, अब हम मरम्मत कर रहे हैं। राजस्थान में बिजली, पेट्रोल और गैस आज महंगी नहीं है, महंगी बनाई गई थी, हम उसे सस्ती और टिकाऊ बना रहे हैं। स्पीकर सर, जब यूथ बेरोजगार होता है तब पे जीरो होता है। इस बिल के अंडर यूथ अर्निंग के साथ लर्निंग करेगा, पेड अप्रेंटिसशिप मैंडेटरी होगी, स्किल लेवल बढ़ने के साथ पे भी बढ़ेगा। स्पीकर सर, आज मार्केट सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल को भी रिवॉर्ड दिया जाता है।
रास्ते के पहले कदम छोटे हो सकते हैं पर रुक जाने से कभी मंजिल नहीं मिलती। ओपोजिशन ने सिर्फ सपने दिखाए, इसलिए ये बिल लो पे नहीं लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ बिल है। महोदय, विकास हमारी फाइल्स में नहीं फैक्ट्रीज में दिख रहा है, हमारी घोषणाओं में नहीं युवाओं की कमाई में दिख रहा है। और जनाब, जब हाथों में काम होगा तो जनता की थाली खाली नहीं रहेगी। धन्यवाद। जय भवानी। माननीय विपक्षी जन अपना अगला तर्क पूछे। माननीय सदस्यों, अब इस बिल पर मतदान होगा। जो सदस्य इसके समर्थन में है वे हाँ कहें, व जो सदस्य इसके विरुद्ध में है वे ना कहें। बहुमत रूलिंग पार्टी की है, अतः बिल पास किए जाता है। सत्ता इनकी सोई है, जनता इनकी रोई है। सत्ता इनकी सोई है, जनता इनकी रोई है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, सदन की मर्यादा बनाए रखें। पैमाना भी भरा हुआ है, दिलदार हमारा साथी है। ये देखो अभी तेरा राम पिक्चर अभी बाकी है। सदन की मर्यादा बनाए रखें। कर्ज किसका था? विपक्ष का। सुधार कौन कर रहा है? हमारी सरकार। कर्ज किसका था? विपक्ष का। सुधार कौन कर रहा है? हमारी सरकार। नींव किसने तोड़ी? विपक्ष ने। सुधार कौन कर रहा है? हमारी सरकार। Now the session is adjourning with the national anthem. All of you, please stand up.